presentation is visible? Let me see. I'll just present something. But still 2 minutes we have to wait because 1958 it will start exactly at 8 o'clock. And today's lecture will not be directly addressing your all problems. We will be talking about, in general, online teaching details and little bit around that. Then we have two other teachers who will be taking care of little functionalities like your other details, which will be taken care of your email account, minor detailing into that, the mobile function. This is total basically approximately. We will be conducting it for 10 hours. In case you feel it more is required, we will go ahead with the move. Okay. Now considering the diverse crowd, instead of speaking in English alone, I will continue in Hindi as well as English, so that at least explanation and detailing is not beyond understanding. Because we all understand Hindi very well in India. And English is the essential when we talk about computers and other things nowadays. Let's get into that. Wait for some time. We'll start exactly at 8 p.m. By that time, all you are veterans and you know the rules, regulations. If you know Google Meet using, it's very good. So probably this particular lecture will be useful. So at 8 o'clock, we will get directly into the lecture. Before that, I just want to brief you little bit. It's really quite encouraging and impressive that basically you all have contacted me for this session and got into this. Most of you are already into the teaching professions, maybe for the 20 years, 30 years. But then I personally felt that such type of courses, not at some cost, but then cost helps in maintaining discipline. So we started with that. But it is not the hard and fast that the intention is not that to make money and all. Interest is to use the talented people and encourage them to get into the online teaching. And that is why I'll be elaborating bit with the help of PowerPoint so that all of you understand that why this particular initiative has been taken up by me. Why is it not coming clear? Then let me tell you very frankly, Razia madam, there are 42 people. Now, every doubt raised by you people will be taken as a learning for your online teacher training program. Okay, जैसे आपने लिख दिया वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर, मतलब आपको एटलीस्ट ये पता है कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल ये आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट चीज. अगर जो स्पीकर है, मतलब आप टीचर और आप लेक्चर दे रही हो और बच्चे वहां से कंप्लेंट कर रहे कि मैडम आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो लोगों के नेटवर्क इम्पोर्टेंट है. एक है ओरेटर का, स्पीकर का, टीचर का, जो एक साइड से डिलीवर कर रहा है, और एक है रिसीविंग एंड वाला. तो मतलब अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही तो मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है. तो इसलिए बाकी 2-3 लोगों को यहाँ चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि मेरी आवाज ठीक से आपके पास आ रही है कि नहीं.
इससे ये क्लियर हो जाएगा कि रजिया मैडम के यहाँ शायद नेटवर्क ठीक से नहीं। सर माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? इश्यू? थांबा थांबा थांबा, अजून येतोय काय? चालू केलेलं पण बंद झालं का? हॅलो, इट्स ऑडिबल? Yeah, it is audible. So let's get into the lecture part. There is issue is that basically कि हमारे यहाँ भी जस्ट जोरों से बारिश हो रही है और जस्ट लाइट गई, तो पहले 5 मिनट तो मैं लेक्चर से बाहर हो गया। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी है और इस सब चीज को आप बिल्कुल ही निगेटिवली मत लीजिए। ये सारी चीजें ही सीखने के लिए लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। Now it is audible. Yeah, nice. Okay, no problem. So now I'll go directly into the little presentation part. In between मैं जब रजिया मैडम ने बोला था तो मैं ये पकड़ के चल रहा था कि शायद मैडम के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जबकि वो मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मतलब ये चीजें हम जो थोड़े यंगर जनरेशन है, जो लेक्चर्स पे लेक्चर्स लेते ही रहते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आप लोग जब ये सब करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे अभी क्या करूं मैं। तो ये सारी जो आपकी थोड़ा मतलब बिकॉज यू आर नॉट इन टू द प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल एरा, इस जमाने के लोग नहीं है आप, तो उसको में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, मुझे भी होता है। तो ज्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपके कीमती 5 मिनट वेस्ट किए, तो अभी मैं चलूंगा सीधा प्रेजेंटेशन में। ओके, सो बहुत सारे आपके सवाल है वो, या आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी चीजें मैंने, अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम, आवाज फिर से नहीं आ रही है? या प्लीज समबडी पुट इन चैट बॉक्स, आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, ओके। तो मेरे हिसाब से शंकर सर, मंगलम सर, आप ये सारी चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप टेक ओवर करिए। लोग नए हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस तरीके से होता है ऑनलाइन टीचिंग, तो हमको तो करना ही नहीं। जबकि अपना लेक्चर का इंटेंशन ये है कि लोग तरीका ही नहीं। जस्ट होल्ड अप मैडम, दरवाजा खुला रखिए। हाँ, तो आप देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन टीचिंग का थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है। आप घर गृहस्थी की सारी बातें भी ऑनलाइन हो जाती है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बट हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन पार्ट। मैंने आपका जो थोड़ा सा समय वेस्ट किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एंड नाउ आई विल गेट इनटू द प्रेजेंटेशन पार्ट। ओके, सो अभी मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। ओके, चलो वो जल्दी से चैट बॉक्स में मंगलम सर या शंकर सर लिखिए। यस, इट इज क्लियर। प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, वेरी गुड। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन पार्ट। ज्यादा कुछ है नहीं, सबको लेक्चर के शुरुआत में कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो अच्छा लगता है। वही रोल मैं आज निभाने वाला हूँ। ये ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहली स्लाइड है।
आपके कुछ सवाल होंगे जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। जैसे व्हाट इज कन्वेंशनल ऑनलाइन एजुकेशन, आप सबको पता है और आप सबने इसी से जुड़े आपके इंटेंशंस लिखे हैं कि सर हम ये सारी जो हर्डल्स है उनके ऊपर आके काम करना चाहते हैं। हमारे पास जो अनुभव से आया हुआ, इतने सालों की मेहनत से आया हुआ ज्ञान है, वो बच्चों तक, वेल विशर्स तक पहुंचाना चाहते हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में। बट जो मेन टेक्नोलॉजिकल थ्रू है, पाइप जिससे जाना है, एंट्री पॉइंट जिससे गुजरना है, वो वाला एंट्री पॉइंट वाला जो गूगल मीट है या जूम है या इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, इनसे हमको थोड़ी परेशानी है। सो यू नो बेटर। बट इसमें जो मैं आपके लिए ऐड करना चाह रहा था, आपने ये जो इंटरेस्ट दिखाया, एक 55-60 एंट्रीज आई, ये सारे लोग अच्छे टीचर है, ये मैं पकड़ के चल रहा हूं। तो आप ये बिल्कुल ही ना मानिए कि आपको एजुकेशन के बारे में नहीं पता। यू नो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ नॉट ओनली अ गैदरिंग नॉलेज बट इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अभी आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सवाल भेजे हैं कि जब आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जब मेरी भावनाएं बच्चों के पास एक डायरेक्ट विजिबिलिटी के थ्रू जो एक तरीका है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं वो नहीं पहुंच रही है, तो एग्जैक्टली exactly मेरे इंटेंशंस या मेरा जो इंप्रेशन होना चाहिए बच्चों के ऊपर या उनसे उनको जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो ऑनलाइन में कैसे मिलेगी। ये सारे काफी कठिन सवाल हैं, इसके जवाब हम देंगे। बट इन सवालों से ये तो जरूर मतलब निकलता है, यू आर वेरी क्लियर what are the advantage of conventional physical education in a class where the teachers and students are interacting on the black or white board in a very close contained nice area, जहां जिसको हम क्लासरूम बोलते हैं। ऑनलाइन पे बच्चा सामने क्लास ऑन करके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, दूसरे मोबाइल पे शायद गेम भी खेल रहा हो तो आपको पता नहीं है। इट इज वेल एक्सेप्टेड एंड ये सारे सवालों के हम आगे जाके जवाब देंगे। नीड टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड, इसके ऊपर Sir, someone has muted you. कहते हैं ये इस तरीके की गलतियां आप मत करिए। यहाँ पे 55 के आसपास लोग हैं, आप मुझे म्यूट वगैरह करेंगे, बेवजह इस तरीके की चीजें यूज करेंगे तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, अगली बार से उस बंदे का एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। और इस बार आपको हमने एक सिंपल प्रोविजन से लिया कि गूगल मीट में जाओ, सीधा लिंक जनरेट करो और आपको इन करो। आगे से ये नहीं होगा। देयर विल बी, हमारे पास परचेस्ड गूगल सूट है, जी सूट है, तो उसके थ्रू आपको लेंगे। तो इस तरीके की चीजों के लिए आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी। तो इस बार जो अभी जिन्होंने मुझे म्यूट किया वो अगली बार क्लास में नहीं आएंगे जब तक वो यहाँ कन्फेस नहीं करेंगे और क्यों किया इसका एक्सप्लेनेशन चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। तो विल नॉट गेट इनटू दैट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नाउ। आई जस्ट गेट इनटू द प्रेजेंटेशन जहां मैं आपको ये बताना चाह रहा था। इज इट पॉसिबल टू म्यूट टू एनीवन? हाँ सर, सब पॉसिबल है। ये क्या है ना, ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं इनमें बहुत ख्याल रखा जाता है आपकी स्वतंत्रता का। मतलब क्या है, भाषण स्वातंत्र्य है, बिहेवियर है, सब कुछ है। फिर भले आप मिसबिहेव करें तो भी चलेगा। पर इसके कुछ ऐसे अंदरूनी रूल्स सिस्टम के इनबिल्ट फीचर्स है कि आप ऐसे लोगों को डिसिप्लिनरी तौर पे एक बार निकाल दिया तो अंदर उनको लेना है कि नहीं लेना है ये आपके हाथ में है। तो मुझे मालूम है मैंने आपके सवाल का डिटेल में जवाब नहीं दिया, बट उस पर आएंगे सर। ओके, क्योंकि ये सॉरी मैं शायद आपको बोर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ये जो लेक्चर सीरीज हमने रखी है, उद्देश्य यही है कि आप जैसे जो अच्छे लोग हैं जिनको पढ़ाई में सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट की बात नहीं हो रही, उनको लगता है कि दिस इज अ सर्विस टू द नेशन एंड मैनकाइंड, उन लोगों के बीच में ये जो बाधा आ गई ऑनलाइन की, इसको हम हटाना चाहते हैं। और बाधा कोई टेक्नोलॉजी समझने की नहीं है, बाधा है लैक ऑफ गोइंग विद द टाइम। मतलब आप इस जमाने के नहीं हो तो आपको इतनी मोबाइल के फीचर्स फास्ट नहीं समझेंगे जितने नए बच्चों को समझते हैं। तो ये जो हर्डल है इसको दूर करने के लिए ये हम कोशिश कर रहे हैं। कितने सक्सेसफुल होंगे वो आप ही अंत में बताएंगे, जब आप बोलेंगे कि आपने 10 घंटे हमारे बर्बाद किए या 10 घंटे काम आए। तो हम फिर से प्रेजेंटेशन पार्ट में चले जाते हैं सर। शंकर सर माइक ऑन करके बताइए क्या प्रेजेंटेशन मेरा दिख रहा है? Yes, sir, it is visible. या सो वी टॉक कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन टीचिंग, बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन का जो उद्देश्य है
कि भाई बच्चों के दिमाग के विकास का एक ट्रेनिंग है एजुकेशन। तो ये ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे हैं वो आगे देखेंगे। आपने देखा कि इस सदी में कोरोना कोविड-19 जैसे क्राइसिस ने लोगों को ये दिखा दिया कि भाई घर पे बैठ के भी आपको नए जमाने के साथ रूबरू रहते हुए आपके एजुकेशन के मामले में आपको अपडेट होना पड़ेगा, या आपको कई नई ट्रेनिंग लेनी है तो घर पे बैठ के ऑनलाइन तरीके से आपको लेना आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग देने के लिए बैठे हैं। और इस पीरियड में आपने देखा जूम से लेके गूगल मीट से लेके टीम जैसे कितने सॉफ्टवेयर आए। तो इसमें एक चीज मैं महसूस की ऑनलाइन के दरमियान, जो हमने जब ऑनलाइन टीचिंग की नर्सरी से लेके 12th तक की क्लासेस शुरू की, तो लोगों ने सिर्फ ये कोविड-19 का ही मुद्दा नहीं उस अपने दिमाग में पकड़ा, उन्होंने ये भी पकड़ा कि बच्चों के आने जाने का खर्चा बच जाएगा, बच्चों को जो वहाँ फिजिकल एजुकेशन मिलता है कोचिंग क्लासेस में बेसिकली, वहां पे उनका कोई माँ बाप का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि क्लास में तो माँ बाप बैठते नहीं। ऑनलाइन कोचिंग में माँ बाप बच्चों के साथ बैठते, स्पेशली वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग नर्सरी टू 3rd 4th 5th, मम्मी डैडी बैठते थे और इतनी सराहना करते थे हमारे इस एफर्ट्स की। दे यूज टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स लाइक एनीथिंग, सेइंग दिस इज समथिंग वंडरफुल थिंग्स यू आर डूइंग, बिकॉज द वे टीचर्स आर टीचिंग, द वे presentations are made, the way videos are shown is not even comparable to any repeated thing। तो इससे हमको प्रेरणा मिली और हमने इसमें जो पिछले 2-3 महीने हैं वो काफी हद तक दिए, और इससे हमको बहुत कुछ सीखने मिला। पास्ट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स पे बाद में जाएंगे। आई जस्ट वांट टू टच अपॉन द अपॉर्चुनिटी पार्ट, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, अपने में कुछ डिप्लोमा लोग हैं, अपने में कुछ डिग्री वाले बच्चे हैं जो शायद इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, पर आजकल थोड़ा स्लैक एंड इकोनॉमी का इशू चल रहा है। तो आई पर्सनली फील कि टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग के पर्सपेक्टिव्स को मैं किस तरीके से ले रहा हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, आज हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन हम पकड़े कि 50% पॉपुलेशन इज यंग जनरेशन एंड परसुइंग समवेयर समहाउ सम टाइप ऑफ एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन। तो आपको ये सुन के 130 का 50% होता है 65 करोड़, उसमें से भी 30% हम घटा दे तो 50 करोड़ पॉपुलेशन को 50 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर चाहिए, ये पकड़ेंगे तो आज 1 करोड़ टीचर्स चाहिए, दो तरीके के, जो नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं और दूसरी जो शिक्षा को एक बहुत ही प्रभावी साधन के तौर पे लेते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो। और इसमें से दूसरा गुण आप में बहुत है, क्योंकि आप खुद अनुभवी टीचर है। पहला वाला गुण आने के लिए ये जो दूसरा बहुमूल्य गुण आपके अंदर है कि आप एक अच्छे होनहार टीचर हो। मैं आपकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ बार बार, मैं इस टाइप का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। मुंह पे आपके बस सारे गलत पॉइंट्स बोलूंगा और पीठ पीछे बोलूंगा कि नहीं उस व्यक्ति में ये अच्छे भी गुण है। ये मेरी आदत मुझे ही बड़ी तकलीफ देती है, बट आदत तो आदत है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए तो मैंने देखा कि मेरी जो सिस्टर है जो पिछले 20-25 साल से पढ़ा रही है, शी इज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड टीचर, कि बहुत अच्छा पढ़ाती मैडम, संस्कार तरीके से, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। उनको मैंने बोला तो उन्होंने 15-20 दिन तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब उन्होंने उनका हौसला बढ़ा के हम दोनों ने, मैं और वैशाली मैडम ने उनको लाया इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, देन नाउ व्हाट शी इज डिलीवरिंग इन लास्ट 1 मंथ, ये काबिले तारीफ है एंड शी हैज लर्नड द थिंग्स। मैं आपके साथ भी यही होगा ये जानता हूँ, इसलिए हमने बोला है कि 10 घंटे की आपकी जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह होंगी, ये 10 दिन में होंगी कि 1 महीने में होंगी मालूम नहीं, बट 10 घंटे में या 15 घंटे में आपको हम उस लेवल पे लाएंगे जहां पे आप बच्चों के साथ जो फिजिकल टीचिंग का तरीका है उस तरीके से एक 70-80% के सक्सेस रेट में काम कर पाएंगे। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आपके सवाल या आपके एक्सपेक्टेशन जो आपने भेजे थे मुझे, उनको मैं सिर्फ यहाँ लिखा हूं ताकि आपको मोटा मोटी पता चले कि वी आर ऑन टॉकिंग अबाउट सेम इंटेंशंस which we wanted to satisfy and which you have, and that is why you have got admission into this class। क्या है? To learn online teaching, मतलब ऑनलाइन टीचिंग का तरीका सीखना है जिससे हम बच्चों से जुड़े रहे। ऑनलाइन टेस्ट बच्चों के कैरी आउट करने हैं अच्छे तरीके से। आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे टेस्ट डिफाइंड होते हैं गूगल फॉर्म्स में। आपने टेस्ट डिफाइंड किया आधा घंटा आपका यूज करके, उसके बाद बच्चों ने जो आंसर सबमिट किए तो बच्चों को कुछ सेकंड के अंदर उनके ईमेल में उनके मार्क्स भी मिल गए, सब कुछ चेक हो गया। आपको ना चेक करना पड़ा ना कुछ तकलीफ करनी पड़ी।
आप बोलोगे ये सब फ्री में हो रहा है, यस। दुनिया की भले ही 5-10% आबादी मानवता के लिए काम करती हो, बट आउटपुट इतना बड़ा है कि उससे दुनिया चल रही है। ये जो सारे सॉफ्टवेयर है जो हम फ्री में अवेल करते हैं, कभी कभी हमने पेड वर्जन लिया है तो बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आउटपुट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब हम 10 घंटे की बात कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, आप 100 घंटा पढ़ेंगे तो भी सारी चीजें जान नहीं पाएंगे, बट 10 घंटे में शायद आप इस लेवल पे आ सके कि आपको जो मैं चाहता हूं वो समझ में आए। एनीवे, कुछ लोगों ने लिखा कि हमको कंप्यूटर का टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना है। शायद यहाँ पे उनका ये लिखा हुआ जो चीज है वो सही है, बट सही मायने में उनके उनके इंटेंशंस डिक्लेयर नहीं कर रहा है। उनके इंटेंशंस यही है कि मैं मोबाइल पे हूँ या कंप्यूटर में हूँ या नोटबुक में हूँ, मेरे पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, डेटा कनेक्शन, और मैं जहां भी पार्क में बैठा हूँ, मौसी के यहाँ बैठा हूँ, या कोविड-19 के कारण कहीं लॉकडाउन कंडीशन में हूँ, तो भी मैं मेरे बच्चों के साथ एज ए टीचर जुड़ा रहना चाहता हूँ। उसके लिए जितना कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, क्या मुझे इस सेशन से मिलेगा? 100% मिलेगा। ओके, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, विल गेट इनटू द नेक्स्ट। गेटिंग यूज्ड टू द ऑनलाइन टीचिंग एज अ मैथ्स एंड ज्योमेट्री टीचर। एक मैडम जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, बहुत ही अच्छे रिहायशी इलाके में और टेक्नोलॉजिकली साउंड इंस्टीट्यूशन के आसपास वो रहती है, मुंबई में। एंड बट शी हैज गॉट वन थिंग कि मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस लेती थी। ऑब्वियसली मैथ्स के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सामने व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो और बच्चे सामने हो, तो आप में कैपेबिलिटी है, आपको इस फील्ड की जानकारी है, तो आप सबसे कमजोर बच्चे को भी उसमें महिरत दिला सकते हो। यू कैन मेक हिम एक्सपर्ट इफ यू हैव लिटरली दैट टीचिंग एड कॉल्ड ब्लैक बोर्ड। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जब आप व्हाइट बोर्ड नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो उंगली से, तो वो जो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है वो दिखती नहीं है। ना ही आई कांटेक्ट है, ना ही बच्चे माइक ऑन करके आपसे बात कर पा रहे हैं डिसिप्लिन की वजह से। तो उनको चैट बॉक्स में लिखना है। बच्चों को जो चीज समझी नहीं वो सही मायने में वो अंग्रेजी में या मराठी में या हिंदी में चैट बॉक्स में लिख भी पाए, ये भी सही मतलब होगा कि नहीं मालूम नहीं। तो यहाँ पे कुछ खामियां हैं जो हम आपकी पूरी या जरूरतें आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे। बट देन लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, if today you are at a stage of 50%, we will try to make you reach to the stage of 70-75%, जिसके कारण आप महसूस करोगे कि now the confidence level and the understanding of tools used in this software world is better for you, जिससे आप बच्चों से ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। मैं थोड़ा फिर से वापस आ रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक टू माई स्क्रीन and just want to check chat box anybody has written anything. You can leave and rejoin the meeting. जिसके लिए बोला मैडम ने, ऑडियो प्रॉब्लम, आई कांट सी द प्रेजेंटेशन सर, आई एम दिस, इज इट पॉसिबल टू म्यूट एनीवन? देखिए, मैंने जब से बात करना शुरू किया है तब से ऑलमोस्ट 5-7 मिनट से सिर्फ 1-2 ही कमेंट आए कि आवाज ठीक से नहीं आ रही या प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं। ये आपके नेटवर्क का, या जब आप जुड़ गए तब नेटवर्क की जो आपके पास किलोबाइट्स में डाटा आ रही थी उसका आउटपुट है। तो आपको जैसे मैडम ने लिखा है चैट बॉक्स में, यू जस्ट रिजॉइन द मीटिंग। जैसे आप मीटिंग रिजॉइन करेंगे, आप नेटवर्क अच्छे नेटवर्क में है तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स अच्छे दिखने लगेंगे। मैं ये पकड़ के चलता हूं कि मेरी आवाज सबको आ रही है एंड आई गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो शंकर सर, मैं प्रेजेंटेशन में जाने के बाद आपको मुझे बताना है कि मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज पहुंच रही है क्या लोगों तक? Yes, sir. Audible and visible. या, थैंक यू सो मच सर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज टू एनहांस टीचिंग स्किल एंड ऑनलाइन टीचिंग स्किल। मैं एक्चुअली पहला क्वेश्चन इन सर का समझा नहीं। उन्होंने लिखा कि मैं टीचिंग स्किल बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने आगे जाके क्वेश्चन लिखा है मैं नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। ये सारी चीजों के लिए ऑनलाइन टीचिंग सेशन की जरूरत नहीं है। ये तो आप इंटरनेट से या मेरे कई और सेशन होते हैं उससे भी बढ़ा सकते हैं। बट आपका हर हुकुम सर आंखों पे, इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स को ले रहे हैं। तो आपको टीचिंग का स्किल बढ़ाना है तो मेरे में जितनी कैपेबिलिटी है, मेरे टीचर्स में जितनी कैपेबिलिटी है, हम जी जान से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जैसे सर ने लिखा था, क्या सर कोई भी किसी को म्यूट कर सकता है? तो इस सवाल के जवाब से जो ज्ञान आपका बढ़ेगा कि किस तरीके से पेड सॉफ्टवेयर लेने से क्या होता है, अनपेड सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स है,
एक स्पेसिफिक जूम सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स है, गूगल मीट के क्या फीचर्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के क्या फीचर्स है। तो ये बातों के बीच में अगर आप अपनी डायरी पर रखोगे और कुछ कुछ चीजें लिखोगे और उसको इंटरनेट पे ढूंढोगे, तो आपको एक हिंट या पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ के आप ऑनलाइन टीचिंग के बारे में अपना ज्ञान जो है वो बढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग स्किल के बारे में स्पेशली मैं कुछ एज अ टीचर व्हाट इज योर रोल इन टीचिंग द किड्स, इसके ऊपर लेक्चर लूंगा, बट मुझे तो लगता है मैं आप सबके सामने काफी छोटा महसूस करूंगा अपने आप को, आपका अनुभव देखते हुए। ऑनलाइन टीचिंग स्किल, यस, ऑनलाइन टीचिंग स्किल का हमने एक छोटा सा कोर्स कंटेंट हमारे जो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था उसमें डाला था, उसको हम और रिफाइंड कर रहे हैं ताकि 10-15 घंटे का एक पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट बने। ये आप महसूस करेंगे जब मेरे आज के एक आधा पौने घंटे के लेक्चर खत्म होने के बाद एक सर आपको सिर्फ इलेबोरेट करेंगे गूगल मीट के माध्यम से कि कैसे आपको जीमेल इस्तेमाल करना है। ये पर्टिकुलर लेक्चर्स जब आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, आप सब सर लोग से, मैडम लोग से, उड़बी टीचर, प्रपोज टीचर से रिक्वेस्ट है, शायद 50-60% चीजें आपको पता होंगी। जो जो 10-20% चीजें आपको पता नहीं है उसके लिए ये 10 घंटे है, बट इसमें आपके 5 घंटे कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होंगे। बोलेंगे आप बोलेंगे वेस्ट हो रहे, तो वेस्ट हो रहे भाई। तो उस तरीके से आपको निगेटिवली इस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट को नहीं लेना है, बट आपके सारे उटपटांग सवाल व्हाट्सएप से हमको भेजने हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जवाब देने की कोशिश करेंगे हर सेशन में। इसके लिए हमने 5 लोगों की टीम बनाई जिसमें मैं हूँ, वैशाली मैडम है, प्रियंका मैडम है, शंकर सर है और मंगलम सर है, और हम पिछले 3 महीने से ये पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव है। इसके अलावा आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, आप गूगल पे देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सेशन, लर्न ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। क्वाइट वेल टेकन केयर ऑफ, सारे सॉफ्टवेयर मैंने जिनको नाम लिया गूगल मीट से लेके सब। फिर टूल्स की बात करेंगे तो व्हाइट बोर्ड, गूगल का जैम बोर्ड, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स, इसके अलावा गूगल ड्राइव नाम की चीज है, इसके अलावा गूगल क्लासरूम है, इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर है जो आप लोग सजेस्ट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने के लिए, तो वो भी हम सीखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस जो हो रही है ये एक तरफा नहीं है। हर बार जो जो डाउट्स आप हमको व्हाट्सएप से मेरे नंबर पे भेजेंगे वो मैं कंपाइल करके ग्रुप पे डालूंगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उस डिस्कशन में जो पेंडिंग सवालों के जवाब सबके समझने रह गए वो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिसने मुझे इंकरेज किया इस तरीके के सेशंस को आगे बढ़ने के लिए, हाउ टू गिव बेस्ट टीचिंग बाय ऑनलाइन मोड और attain very good output when you don't have eye contact, when you are not personally present in front of the teachers। सच पूछिए तो मेरे पास इस सवाल का सही जवाब नहीं है। जो जवाब है वो शायद आपको पसंद आए तो देखिए। आई एम स्ट्रांगली ऑफ ओपिनियन, जिसको जो पसंद है वो काम करते वक्त कोई भी आनाकानी नहीं करता। उदाहरण कई है, सचिन तेंदुलकर से लेके मदर टेरेसा से लेके तेनसिंग नोरगे तक, या फिर बाबा हमटे हो या प्रकाश हमटे हो या एपीजे कलाम साहब हो। यहाँ बात यही हो रही है, पढ़ाने के समय बच्चे को हिस्ट्री पसंद आए कि नहीं पता, और उसको शायद ज्योमेट्री आए कि नहीं पता नहीं, अलजेब्रा आए कि नहीं पता नहीं, शायद सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आए, या फिर शायद उसको मराठी या इंग्लिश या हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज पसंद आए। अगर उसमें से कोई भी चीज उसके रुचि की है तो बच्चा उधर इंटरेस्ट से सुनेगा, और जो इंटरेस्ट से ऑनलाइन क्लास सुनेगा ही विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि इन 1 घंटे के दरमियान सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर या टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। यह हमारा पिछले 3 महीने का अनुभव है। तो अगर बच्चा इंटरेस्ट से ऑनलाइन टीचिंग में 1 घंटा बढ़ेगा तो 40 घंटे के अंदर उसका एक सब्जेक्ट कवर करने की क्षमता इस ऑनलाइन टीचिंग में है, अगर टीचर सही से पढ़ा रहा है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। इफ दिस इज हैपनिंग तो ऐसे 6 सब्जेक्ट होते तो 240 घंटे हो गए। 240 घंटे को आप कंपेयर करिए जो स्कूल कॉलेज में बच्चों का समय इस्तेमाल होता है। मैं उसको वेस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां सिर्फ बच्चे एकेडमिक्स टीचिंग पढ़ने नहीं आते हैं, वहां संस्कार, डिसिप्लिन, अनुशासन जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें सीखने आते हैं। और अच्छे टीचर ये भली भांति अच्छे से पढ़ाते हैं, और इसी के कारण संसार में अभी भी अच्छे लोग हैं।
बट सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करें जिसपे माँ बाप ज्यादा ही गौर करते हैं हर मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो मैं बोलूं यहाँ हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हमने सेमेस्टर का सिलेबस खत्म कर दिया है कुछ कुछ स्टैंडर्ड के, कुछ कुछ सब्जेक्ट का पिछले 2 ढाई महीने में। जून, जुलाई, अगस्त, आज तीसरे महीने का अंत पे हम खड़े हैं और हमने जून के 1 या 25 मई को हमने शुरू किया था। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ 8 मैथ्स, और ये खत्म करते वक्त रिवीजन के भी 2-4 घंटे हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही सही तरीका। आप बोलेगे बट सर आपने उस चीज का तो जवाब ही नहीं दिया, स्टूडेंट को कितना फायदा हुआ। मैं सच बोलूं, 8वीं तक के या 7वीं तक के बच्चों के पढ़ाई में जितना टीचर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना माँ बाप का और बच्चों का भी होना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई में दिल लगा रहे इसलिए माहौल बनाने का काम टीचर के साथ माँ बाप का है ही, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये चीज माँ बाप घर पे करेंगे तो बच्चा 1 घंटा पढ़ते वक्त उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके एजुकेशन की जो नई पॉलिसी आई उसके हिसाब से आफ्टर 10 इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करके अपने भविष्य के लिए अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके अपने लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ तो सही करेगा। तो मुद्दा यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा सुनेगा। इसमें शायद आपके पढ़ाई के स्किल, नॉलेज, आप जितना मस्त पढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें, आई कांटेक्ट और फिजिकल प्रेजेंस को कहीं ना कहीं साइड लाइन कर देंगी धीरे धीरे, नॉट इमीडिएट। सो सॉरी, मैंने आपके सवाल का सही परफेक्ट जवाब नहीं दिया, ये मुझे भी पता है, बट कांट हेल्प इट। आज मेरे पास यही जवाब है। शायद 10 घंटे के सेशंस के बाद मैं भी आपसे कुछ सीखूं और दूसरा कोई अच्छा जवाब ढूंढूं। टू लर्न ऑनलाइन टीचिंग फॉर मराठी मीडियम स्टूडेंट विथ ऑनलाइन टेस्ट, ये ही ऑनलाइन टीचिंग का एक बढ़िया फायदा है। आप बोल रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, और ये चीज वो घर पे कंप्यूटर पे देख रहे हैं। ये इतनी इन्वेस्टमेंट माँ बाप को करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग में लोग लाखों रुपए डालते हैं। अगर आप जैसा होनहार टीचर बच्चों को 10-20 रुपया घंटा जैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ा रहा है, तो एक लाइव टीचर के मदद से कोई पढ़ा रहा है, लाइव टीचर पढ़ा रहा है, तो माँ बाप को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये सब डालेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में 50% फील आ जाता है कि बच्चा क्लास में बैठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे वेटरन टीचर्स जो लायक है वो ये सोचते हैं कि मैं मराठी माध्यम से हूँ, हिंदी माध्यम से हूँ, तो मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊंगा। आपको आपकी लैंग्वेज में बात करनी है, बच्चे को आपको आपकी लैंग्वेज में सुनना है। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या आती है मालूम है? हम इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को साथ में रखते हैं, क्योंकि इंटेंशन हमारा पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को तीनों भाषा समझे, जो टीचर है वो तीनों भाषा में एक्सप्लेनेशन दे। तो हमारे साथ जो टीचर है उनको थोड़ी तकलीफ होती है कि उनको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन देना है, मराठी में एक्सप्लेनेशन देना है। ये आपके साथ नहीं होने वाला है। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो उस सब्जेक्ट को उन बच्चों के लिए आपको पढ़ाना है। सो देन लैंग्वेज विल नॉट बी बैरियर, but somehow somewhere in this particular 10-hour session we will help you to overcome the hurdle of understanding Hindi English. So we will try to come out of that also. Shankar sir, please switch on your mic and tell me whether I am visible and audible correctly. Yes sir, you are visible and audible. Yeah, thank you sir. Now come to the next part. Okay, to enhance elaborating explaining skill. मुझे यह भी फिर से ऐसे लगा कि ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित नहीं है। अगर आप न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, या मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढने की मेथड एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, या बच्चों को सिंपल कोई बारिश के ऊपर की पोएम सुना रहे हो, इसमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई आपको ऊपर से नॉलेज नहीं देने की जरूरत है। आपकी जितनी डेप्थ अच्छी होगी, आपको जितनी पढ़ाने के इस करियर में रुचि होगी, उतनी सहजता से आप पढ़ाएंगे। हमने शुरुआत में हमारे ऑनलाइन क्लासेस में देखा कि जब कुछ टीचर शुरुआत में बड़े ही प्रेशर में लेक्चर ले रहे थे तो मैडम को या मुझे प्रेजेंट रहना पड़ता था। आज हम उनसे इतने खुश हैं कि वो जितनी दिल से, शिद्दत से पढ़ाते हैं, ऐसे लगता है कि इनको हम शुरुआत में उनकी कॉम्पिटेंसी के लिए ना, कॉम्पिटेंसी खास ना होने के कारण ना बोलते तो शायद एक हम अच्छे टीचर को खो देते। तो आप ये जो इलाबोरेटिंग स्किल वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं वैसे ही एक 10-12 लेक्चर साल में कंडक्ट करता हूँ हमारे बच्चों के लिए। उसमें आप, यू आर फ्री टू ज्वाइन, and the lecture is about
detailing on sciences, detailing on the languages, detailing on the time management, detailing on the personality development. इस लेक्चर्स का फायदा या कुछ आपके लिए यूजफुल हो तो उसको उठा सकते हैं। इम्प्रूविंग नॉलेज इज इंक्लूसिव ऑफ दैट। जो कुछ सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। टू बी टेक savvy टू गेट कनेक्टेड विद द न्यू एरा स्टूडेंट, ये हम आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसी के लिए ये सेशन चलेगा। लर्न ऑनलाइन टीचिंग टू टीच मैथ साइंस इन मराठी। वंडरफुल क्वेश्चन, बट आंसर इज ऑलरेडी बिन गिवन। हम किस तरीके का टेक्निक फॉलो करते हैं सर और मैडम, देखिए मैं सिंपली प्रेजेंटेशन वगैरह चीज बच्चों को जब एकेडमिक्स पढ़ाया जा रहा है तो नॉर्मली टीचर्स को बोलता हूँ तकलीफ मत करिए। उससे अच्छा आप पीडीएफ जो किताब फ्री में डाउनलोड करने के लिए बाल भारती की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस किताब को ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। एक ठीक ठाक टाइप के मोबाइल से या कंप्यूटर से आप उसको प्रेजेंट स्क्रीन माध्यम से प्रेजेंट कर दीजिए और फिर ऑडियो मोड से आप उसको पढ़िए या बच्चों को उसको पैराग्राफ वाइज पढ़ने बोलिए और आप फिर मजे लीजिए किस चीज के, सिर्फ एक्सप्लेन करने के। आपको उसके पढ़ने के पीछे भी एनर्जी नहीं डालनी है। आपके सामने जो आपके फेवरेट 10 स्टूडेंट बैठे हैं वो इतना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि बच्चों को कुछ अलग ही फीलिंग आता है कि चलो यार ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये सर गूगल पे डालने वाले हैं और यूट्यूब पे मैं सारे दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि देखा मैंने वो पैराग्राफ कितना अच्छे से पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम खुद इंजॉय कर रहे हैं आजकल हमारे ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें। मतलब पैसे से ज्यादा डबल मजा आ रहा है अनुभव का। तो आपको भी इसमें मजा आएगा। हमारे पास जो एक 30-40 टीचर है उसमें से एक 10 टीचर तो लाजवाब है। दे आर एंजॉयिंग दिस, दे फील ऑलवेज इंडेप्टेड कि सर आपकी वजह से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई। मैं आपसे यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए जो 1 करोड़ ऑनलाइन टीचर्स की फ्यूचर में 2040 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी डालनी है तो तब तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अगर किसी के करप्ट इंटरेस्ट बीच में ना आए तो इसमें आप एक अहम रोल निभाने वाले हो आपके नॉलेज और आपके अनुभव के माध्यम से। लेट्स गेट इनटू द समथिंग नेक्स्ट थिंग, पीपीटी वीडियो इंसर्टिंग इन ऑनलाइन लेक्चर ये कैसे करें, आगे वाला क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ। ये सारी चीजें जैसे मैंने आपके सामने किया, ये सारी चीजें का आपको एक्सपर्ट नहीं किया 10 घंटों में तो आपको बिल्कुल हमको एक पैसा भी नहीं देना है। ऊपर से हमसे आपको पैसे मांगने का पूरा अधिकार है। तो पीपीटी वीडियो इंसर्शन ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर लिखा है गेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस। मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से ले रहा हूँ, जो जवाब मुझे मालूम है वो दे रहा हूँ। बच्चों को गेज करने के लिए आप उनको सवाल पूछ सकते हैं, आप उनका रीडिंग स्किल कितना डेवलप हुआ, आप उनको अंडरस्टैंडिंग कितना आया ये पूछ सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्ट। पहले आपने सवाल पूछा कि मैंने ये जो शिवाजी महाराज के बारे में पैराग्राफ पढ़ा उसमें ये लिखा था कि उन्होंने स्वराज्य की शपथ फलाना फलाना किले पे ली। जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिखे यस, तो बच्चे लिखेंगे। फिर उसमें जिसने पहले लिखा आप बोलेंगे प्लीज XYZ जो नाम होगा बच्चे का उसको आप बोलेंगे आप माइक ऑन करिए और आप अपना जवाब दीजिए। फिर बच्चा जवाब देगा। इसमें जो भी इनडिसिप्लिन किया उसका नेक्स्ट टाइम से पत्ता कट। तो डिसिप्लिन की डिसिप्लिन बनी रहती है, आपके प्रति बच्चों का आदर अच्छा रहता है क्योंकि आप बिल्कुल मूड खराब न करते हुए कहीं भी निगेटिव फीलिंग, क्लास में तो ये होता है ना कोई मस्ती कर दिया और आपका मूड खराब हो गया। यहाँ ऑनलाइन में ये सारी चीजें बहुत ही कम होती है। देखिए अभी मेरा इनिशियली किसी ने माइक म्यूट कर दिया, मैं थोड़ा नाराज सा हो गया तो वो भाप लिया सामने वाले ऑडियंस ने। और अभी देखिए उसके बाद से मेरी आवाज शायद थोड़ी ठीक नहीं आ रही। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिन से हमने सूरज देखा ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी मोबाइल नेटवर्क पे लाइट जाने के बाद मैं अगर आपका लेक्चर अच्छे से ले पा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि जो आपका मोबाइल नेटवर्क है एयरटेल से लेके रिलायंस से, घर में एक कोना ढूंढना है जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है और मोबाइल के माध्यम से आप आपके पसंदीदा स्टूडेंट के साथ जुड़े हो जिनको ज्यादा डिसिप्लिन सिखानी नहीं पड़ती। सो इफ गेजिंग अंडरस्टैंडिंग देयर इज वन सिंपल वे, बाय इंटरेक्टिव सेशन इन क्लास इटसेल्फ, बाय पुटिंग assignments in a Google Classroom, giving homework and then generating the question paper। आप इतने बढ़िया तरीके से एग्जाम्स ले सकते हो बच्चों की कि मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन में इससे बढ़िया एग्जाम कोई और हो सकता है। ये सारी फैसिलिटीज प्रावधान हमको गूगल ने फ्री में करके दिए। हो सके तो बिल उनको जो है गूगल वाले उनको कभी कंट्रीब्यूट कर लीजिए सोशल तरीके से। कहीं धर्मस्थल में जाके पैसे डालने से अच्छा इन अच्छे लोगों को आप कंट्रीब्यूट करें तो बेहतर होगा। नाउ टेकिंग फीडबैक अगेन, आज हम आपसे एक अटेंडेंस फॉर्म भरने वाले हैं। कैसे? जैसे ही क्लास खत्म होगी जिस ग्रुप का आप हिस्सा है व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने बनाया वहां पे मैं वो लिंक डाल दूंगा।
और आप उस लिंक को टच करके इंटरनेट पे जाएंगे और वहां पे फीडबैक देंगे कि कौन सा क्लास हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, टीचिंग ठीक था कि नहीं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। उस फीडबैक के ऊपर अमल करते हुए मैं आगे के लेक्चर को डिफाइन करूंगा। तो सर और मैडम, मुझे मालूम है मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बात कर रहा हूँ, जबकि आपकी इंटरेस्ट है कि हमको गूगल मीट सिखाओ, क्लासरूम सिखाओ, बट पहले दिन ये सब करना मैं सही नहीं समझ रहा हूँ। फिर भी अगर मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, तो आपसे मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा समय भी देता हूँ। प्लीज आप, मैं गलत तरीके से जा रहा हूँ तो चैट बॉक्स में लिखिए कि सर प्लीज गो टू सम सॉफ्टवेयर टीचिंग। तो जो हमारे टीचर उसके लिए रेडी बैठे हैं वो लेंगे, नहीं तो मैं अभी 40 मिनट बात कर रहा हूँ, अगले 5 मिनट बात करके सर को दूंगा, नहीं तो 5 मिनट पहले ही सर को दे दूंगा। प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स क्या चाहिए, नए टीचर सॉफ्टवेयर कंटिन्यू करे या मैं ही ये 5 मिनट कंटिन्यू करूं और सर के हाथ में दे दूं। सर लोग आपको लिखना है, मैडम लोग। सर शंकर सर माइक ऑन करिए, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू सर। तो अभी सब लोग नहीं लिख रहे, तो एक सर ने लिखा कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस तरीके से उन बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, करना है जो रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली नहीं देते। तो दिया दिया, सबने दिया। थैंक यू सर, मैडम। आप जैसे एल्डरली लोगों के साथ मैं बात करते वक्त थोड़ा ब्लंट और शार्प, कट टू कट बात करता हूँ, इसका मुझे थोड़ा अफसोस रहता है, बट फिर से ये मेरा नेचर है, तो मैं थोड़ा वक्त कम जाया करने के लिए कट टू कट बात करता हूँ। तो मेरे से कुछ गलत बिहेवियर हो गया हो तो माफ कर दीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट स्लाइड कि कोर्स कंटेंट क्या है। सच पूछिए तो इस कोर्स कंटेंट पे बात करने के लिए सर लोग हैं। बेसिक्स कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग में हम आपको अगर विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल स्टोर कैसे करना है, वर्ड एक्सेल जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो थोड़े से सिखाएंगे। फाइल स्टोरेज सिस्टम इसलिए सिखाएंगे कि गूगल ड्राइव में जब आपको फाइल स्टोरेज करनी है आपके क्लास की, या गूगल क्लासरूम में उसको अपलोड करनी है, तो आपको ये विंडोज के बेसिक फंक्शन मालूम होने चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें ऑनलाइन टीचर हैं हम, बट ऑफलाइन आपका टीचर है आपका बच्चा या आपके घर के छोटे सदस्य, जिनकी उम्र 5 से लेके 15, 20, 25 है। मैं आपकी सबकी उम्र पकड़ के चल रहा हूँ कि एक 20 के ऊपर आप सब लोग हैं। तो ये 20 के नीचे वाले जो सारे बच्चे मस्ती करने वाले आपके घर पे बैठे हैं, वो ये सब चीजों के एक्सपर्ट है। आज उनके साथ आपको थोड़ा अच्छाई से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि कल से वो आपके टीचर हैं। आपको ये सारी चीजें जो हम यहाँ थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करेंगे, वो घर पे आप उनके मदद से अच्छे से कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में हमने दिए हुए होमवर्क डालेंगे। तो आज का होमवर्क 1 ये है कि सोचिए मैंने आपको सिर्फ एक आपके पसंदीदा चित्र बनाने को बोला है, तो आपने उस पसंदीदा चित्र का फोटो निकाला, ओके? या फिर मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में जो आया बोल रहा हूँ, फोटो निकाला। मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी एक होमवर्क डाल दिया है, पकड़ लीजिए, कि प्लीज सबमिट दी फोटोग्राफ टेकन बाय यू, today's best photograph taken by you in your mobile depicting some valid use of COVID-19 slack period। मतलब जो घर पे बैठ के आप आराम कर रहे हैं ना, उसमें आपने कुछ अच्छा काम किया, उसका फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन गूगल क्लासरूम में आप अपलोड करें और नीचे 1-2 लाइन का कुछ सेंटेंस लिखे। तो ये चीज करने में आपको इतनी तकलीफ होगी कि ये पढ़ा रहे हैं कि हमको सजा दे रहे हैं। बट यही चीज अगर आपके घर में जो छोटा बच्चा है उसको आप बोलेंगे, तो बोलेगा मम्मी, आंटी, चाची, मौसी 2 मिनट में करके देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको उनसे सीखनी है। हम सिर्फ आप एक के लिए एक जरिया है जो बताएंगे ये काम कीजिए, नहीं आया तो अगली क्लास में आपसे या आपके सामने किया जाएगा प्रैक्टिकल। तो इस तरीके का कुछ होमवर्क देने का मेरा विचार था कि आपने हमको जो क्वेश्चन भेजने हैं कि आपको क्या क्या सीखना है, वो जो आपने ऑलरेडी भेजे, नाम, एज, लोकेशन, कहाँ रहते हैं आप, फिर एजुकेशन आपका, और एक ब्रीफ में इंटेंशन, ये आप वर्ड में टाइप करेंगे। उस वर्ड में टाइप किए हुए चीज को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और वो पीडीएफ फाइल आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। आप बोलेंगे ऐसे फास्ट फास्ट बोलेंगे तो हम समझेंगे क्या, लिखेंगे क्या और आउटपुट क्या देंगे? कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं होमवर्क क्लास में डाल दूंगा। पहले दिन को तो चाहिए तो ये मैं आपको व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा। बट आपने प्रयत्न किए, कोशिश की, और आप कहाँ अनसक्सेसफुल रहे, इसका ब्यौरा जब तक, इसका टोटल रिपोर्ट जब तक हमारे पास ओरली रिटर्न फॉर्म में नहीं पहुंचेगा,
आपकी सही मायने में हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने आपको बोला साइकिल खरीद लो और देखिए इस तरीके से बैलेंस करके साइकिल चलाना सीख जाए, मुश्किल है ना। मैंने आपको बोला पानी के पास जाइए और इस तरीके से आप तैरना सीख जाइए, मुश्किल है। तो इस तरीके से एजुकेशन में भी विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन कुछ चीजें मुश्किल होती है। उनको आसान करने के लिए आपको ट्राई करना है और आपको जो नहीं आया वो हमको सही तरीके से कम्युनिकेट करना। बहुत सारी फाइन डिटेल्स लिखे हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में जाऊंगा। आज आपके पास जो एक गलत फहमी है उसको मैं हटाना चाहता हूँ। सर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा क्या? सर फिर वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा, केबल नेट लेना पड़ेगा क्या? सर फिर एक अच्छा मोबाइल लेना पड़ेगा क्या? सर टैब लेना पड़ेगा क्या? सर कुछ नया सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा क्या? प्लीज कम आउट ऑफ दिस। आज आपके पास आपके हाथ में ये गूगल मीट इस्तेमाल करते वक्त जो मोबाइल है, इट इज मोर देन इनफ रिसोर्स टू मेक एटलीस्ट 15-20 हजार रुपया पर मंथ इफ यू आर स्पेयरिंग 5 आवर्स। अब बोलेगे कैसे? सोचिए, मैंने 1 करोड़ 50 करोड़ बच्चों के लिए 1 करोड़ टीचर का प्रावधान करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ये सब चालू किया। तो 50 बच्चों के पीछे एक टीचर है, आपके पास तो ऑलरेडी 50-60 बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाना चाहते हो। मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग एक्चुअल टीचिंग प्रोफेशन में स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते और आप कुछ अपना नया वेंचर चालू करना चाहते हो, तो आपने ऑनलाइन टीचिंग की कुछ कम से कम पैसे में क्लास खोल दी, 20 रुपया पर घंटा। ये कम से कम रेट है, मार्केट रेट ये है। ऐसे ऐसे नमूने हैं जो इंटरनेट पे एडवर्टाइज देके 750 रुपया पर घंटा सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से ले रहे हैं। तो आप अगर 20 रुपया 30 रुपया पर आवर लेके अगर अगर आप क्लासेस कंडक्ट करोगे तो आप हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की, कायनात की मदद कर रहे हैं नॉलेज फैलाने में। आज दुनिया के 3-4% लोग ग्रेजुएट है। उनमें से ग्रेजुएट होने के बाद पढ़ाने की क्षमता रखने वाले उसमें से 3-4% होंगे। उसमें आप कितनी ऊपर की श्रेणी में है। और ऐसे लोग सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के जरिए जो आप 10 घंटे में सीखने वाले, उसके कारण अगर आप जो डिप्राइव्ड क्राउड है जिनको सीखने की इच्छा है उनसे दूर रहेंगे तो सही बात नहीं है। मैं इतना क्यों कॉन्फिडेंटली और जोर देके इस बात को बोल रहा हूँ? हमने ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास शुरू किया, लोग भर भर के आ गए। हमने जूनियर से लेके 12th तक का क्लास शुरू किया, लोग भर भर के आ गए। हमने ये ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, लोग भर भर के आ गए। जरूरत बहुत है पढ़ाई लिखाई की और लोग पढ़ना भी चाहते हैं। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, कोई ज्यादा रिसोर्स नहीं है। 20 रुपया 50 स्टूडेंट 1 महीने के लिए आपने 20-30 घंटा पढ़ाया, आपने 15-20 हजार रुपए कमा लिए। घर पे बैठ के हिसाब कर लीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ। और इतने 5 घंटे की आपकी मशक्कत के लिए बहुत ज्यादा पैसे है हिंदुस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हुए। तो जो अच्छे से काम कर रहे हैं उन टीचर्स के लिए नहीं है, ये उन टीचर्स के लिए है जो आगे जाके टीचिंग को एक प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं और देश की और समाज की सेवा भी करना चाहते हैं। अच्छे टीचर्स की हमेशा ही कमी रही है दुनिया में, इसलिए इतने गलत काम होते हैं और कोविड-19 जैसा क्राइसिस आता है। तो ये जो आप रिसोर्सेस के कारण आप अपने आप को कोस रहे कि मेरे पास ये नहीं है, तो सबसे डिप्राइव्ड इलाके में मैं रहता हूँ। एक गांव में रहता हूँ ना, वहां किसी का नेटवर्क रहता है, लाइट दिन में 4-5 बार जाती है और मीटर का बिल आता है 4,000 का। फिर भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पिछले 3-4 महीने से चला रहे। इसके पीछे हमारी इच्छा शक्ति है और जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके आउटपुट देने की प्रतिभा या फिर इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो आप ये सब कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ मैं कुछ और लिखा है बट मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल फील देना चाहता हूँ कि किस तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 15 मिनट पहले मैं मेरी तरफ से क्लास क्लोज कर रहा हूँ। नाउ मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग भी कर दिया। मंगलम सर चार्ज लेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट वो आपको कुछ पढ़ाएंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये अकेला और एकमेव अकेला तरीका नहीं है और ना ही एक अकेले टीचर है। 5 लोगों की टीम आपको पढ़ाने वाली है। सिर्फ एनकरेज करने के लिए, पूरा ब्रॉड डोमेन देने के लिए मैंने ये आपके 45 मिनट लिए। इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और इसलिए क्योंकि आपका बड़ा अंदर से ये हो रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं आप, मुझे प्रैक्टिकली सीखना है। सिखाएंगे जरूर, और तब तक सिखाएंगे जब तक आपको आता नहीं। क्योंकि आपने जो टू मच रिस्पॉन्स दिया है ना, तकरीबन एक 60-70 एंट्रीज, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी विथ योर इंटरेस्ट। और जहां इंटरेस्ट है उसको सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी। तो इसके लिए अभी मंगलम सर विल टेक चार्ज विदाउट मच ऑफ इंट्रोडक्शन। ही विल स्टार्ट द लेक्चर। ही इज टीचिंग यू फ्रॉम द बिहार, पटना।
पटना से वो अपने साथ जुड़ रहे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। उन्होंने बहुत कुछ कारनामे किए हैं। आज उनकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, अगली बार जब लेक्चर लेंगे तो डिटेल में विस्तार में उनके बारे में बोलूंगा कि जितनी इज्जत वो मेरी करते हैं एज अ साइंटिस्ट फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स, मैं एज अ 20 ईयर्स ओल्ड जो यंग स्टूडेंट है उनकी भी इतनी इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा और इच्छा शक्ति है। सो मंगलम सर, प्लीज टेक ओवर एंड गो अहेड विद द असाइनमेंट्स यू हैव डिफाइंड फॉर दिस veteran teaching staff. Thank you. Please continue. Yes sir, okay sir, thank you sir. My voice is audible to you? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हाँ ओके। तो आज मैं बताऊंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बारे में, जो कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जैसे हम अभी हम तो गूगल मीट, हमारे तो सब ऐप्स मंगलम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंगलम सर, यू आर नॉट ऑडिबल। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? सर आवाज आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं। मेरी आवाज, वॉइस क्लियर? सर बीच में कट रही है, क्यों देखिए? क्योंकि आपने तो कहा था मौसम अच्छा था आज पटना का। ये सर नेटवर्क तो सही है। ठीक है, देख लीजिए। क्योंकि मेरी आवाज अब आ रही है क्या? यस सर। माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके ओके। तो मैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में यूजुअली हम लोग जूम, सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गो टू मीटिंग या कभी कभी यूट्यूब पे भी लाइव टीचिंग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट स्क्रीन करके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जूम ऐप के बारे में। तो प्रेजेंट क्या को तो जूम ऐप पहले आप गूगल से जूम ऐप, तो मेरे में पहले ही जूम ऐप है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। मंगलम सर, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर, आई एम एबल टू हियर यू। बट देन आपकी आवाज बीच में कट जाती है बहुत बार, तो लोगों को इट विल, हाँ, सी पीपल आर ब्रेकिंग वॉइस। तो क्या करें? ओके सर, तो शंकर सर को कंटिन्यू करने दीजिए सर। ऑलरेडी हम लोग, शंकर सर प्लीज स्विच ऑन योर माइक। मंगलम सर स्विच ऑफ। यस सर। आपकी आवाज तो क्लियर है। आपके पास नेटवर्क है, वाईफाई? यस सर। बट आपकी आवाज थोड़ी ऐसी भरी हुई आ रही है, क्यों आ रही है? लेट मी चेक सर। नाउ इज क्लियर सर? हाँ ठीक है आवाज। आप कुछ लेना चाह रही है, ले लीजिए। वैसे ही लोगों को नाराज नहीं करना है पहले लेक्चर में। जी सर जी। सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अपने मोबाइल फोन के कुछ बेसिक फीचर्स बताऊंगा, ठीक है, जो कि हम हमारे ऑनलाइन टीचिंग में यूज करने वाले हैं। करेक्ट। वैसे तो हम ऑनलाइन टीचिंग मोबाइल से भी करने वाले, मतलब मोबाइल से भी सीखने वाले हैं और कंप्यूटर से भी हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। लेकिन फॉर टुडे मैं आपको कुछ मोबाइल के बेसिक फीचर्स बताऊंगा। सो जब बात टीचिंग की आती है, सो फॉर टीचिंग वी नीड लॉट्स ऑफ डेटा। करेक्ट। वी नीड पीडीएफ्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो सारा डेटा है ये हमारे मोबाइल में रहना चाहिए। करेक्ट। सो फॉर स्टोरिंग दिस डेटा एंड फॉर मैनेजिंग दिस डेटा वी नीड अ गुड फाइल एक्सप्लोरर। करेक्ट। सो बहुत सारे मोबाइल में अलग अलग तरीके के फाइल एक्सप्लोरर्स होते हैं, बराबर। लेकिन लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू द फाइल मैनेजर। माय स्क्रीन इज विजिबल? ओके, थैंक यू। ठीक है। तो
मैं जो फाइल एक्सप्लोरर आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज द फाइल एक्सप्लोरर बाय गूगल, ठीक है। तो हम जो पर्टिकुलरली वी आर फोकसिंग ऑन गूगल मीट, ठीक है। हम गूगल मीट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस एप्लीकेशन इज ऑल्सो बाय गूगल फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। और मैं ये इसलिए आपको रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी सिंपल टू यूज एंड इट इज सेफ ऑल्सो, ठीक है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस ऐप एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके मोबाइल में जो कुछ भी डेटा है वो पहले से ही अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे दिया गया है। लाइक आपने जो कुछ फाइल्स डाउनलोड किए हैं या फिर इमेजेस है, वीडियोस है, मतलब आपका डेटा किसी भी फोल्डर में हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप ऑडियोज चाहते हैं सो यू विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऑडियोज एंड यू विल फाइंड ऑल द ऑडियोज प्रेजेंट इन योर इंटरनल मेमोरी, ओके। इसी तरह से अगर आपको कुछ फाइल्स शेयर करनी है तो इसकी फैसिलिटी भी इसमें इस फाइल एक्सप्लोरर में दी गई है, ठीक है। सो यू डोंट नीड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर शेयरिंग द फाइल एंड टू मैनेजिंग योर डेटा, ओके। सो दिस इज अबाउट द फाइल एक्सप्लोरर। तो अभी हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन फॉर आवर मोबाइल, करेक्ट। सो फॉर इंटरनेट कनेक्शन देयर आर 3 ways so that we can connect our mobile to the internet, ठीक है। पहला जो रास्ता है दैट इज वाईफाई, ठीक है। वी कैन यूज वाईफाई। द सेकंड वन इज मोबाइल डाटा कनेक्शन एंड द थर्ड वन इज दैट इज मोबाइल हॉटस्पॉट, ठीक है। सो अभी फिलहाल जो है मैं वाईफाई पे मतलब वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरी अभी लाइट चली जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो क्या होगा कि मेरा वाईफाई बंद होगा और मेरे पास डेटा कनेक्शन है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा डेटा कनेक्शन ऑफ है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, लाइट चली गई, ठीक है, वाईफाई बंद हो गया, सो देयर इज अ ब्रेकडाउन। सो टू अवॉइड दिस वी हैव अ वेरी गुड फीचर इनबिल्ट इन एवरी मोबाइल, ठीक है। कौन सा फीचर है वो? आपने क्या करना है, आपके किसी भी सिम कार्ड पे मोबाइल डाटा है तो उस पर पहले ही सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मेरा वाईफाई भी शुरू रखा है और मोबाइल डाटा भी शुरू रखा है, करेक्ट। सो यू हैव टू डू वन सेटिंग। क्या सेटिंग करनी है आपने? सेटिंग में जाना है, वाईफाई की सेटिंग में जाइए, उसके बाद में एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है, उसके बाद में वाईफाई असिस्टेंट। अब इस वाईफाई असिस्टेंट को अगर आप ऑन करेंगे तो क्या होगा कि अगर लाइट चली जाती है या फिर वाईफाई बंद हो जाता है सडनली, सो योर मोबाइल विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट योर सेशन टू योर मोबाइल डाटा, ठीक है। मतलब ब्रेकडाउन अगर हो भी जाएगा आपके सेशन में तो भी बहुत छोटा ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप मोबाइल डाटा पे क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं, सो नाउ 4G इज इन ट्रेंडिंग एंड आई वुड रिकमेंड यू टू यूज 4G ओनली, ठीक है। अभी आपके पास वाईफाई भी नहीं है और मान लीजिए आपका एक दिन का जो मोबाइल डेटा का कोटा होता है 1 GB 1.5 GB वॉट एवर इट इज, वो खत्म हो गया है, लेकिन आपका जो कोई कलीग है या फिर फैमिली मेंबर है, दोस्त है, उसके मोबाइल का डाटा भी अनयूज्ड है, तो यू कैन यूज हिज और हर मोबाइल डाटा विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल हॉटस्पॉट, ठीक है। ये जो सारी सेटिंग्स है ये बहुत ही बेसिक सेटिंग्स है एंड आई नो कि आप में से जो 90% लोग हैं मतलब 90% लोगों को ये सारी सेटिंग्स पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज अनदर वन फीचर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लाइक कुछ लोगों को अगर हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन की तरफ स्टेयर करते हैं तो तकलीफ होती है आंखों में, बराबर, आंखों में पानी आना वगैरह। So there is one feature provided for every Android mobile nowadays, that is a reading mode, okay. If you turn on the reading mode, the intensity of your mobile light or brightness reduces, ठीक है, इससे कि आपके आंखों को थोड़ी कम तकलीफ होगी। अगर आपको 1 घंटा पढ़ाना है मतलब आपको 1 घंटा आपका मोबाइल सामने रखना पड़ता है, ठीक है। सो यूजफुल आई थिंक रीडिंग मोड। रीडिंग मोड, यस सॉरी आप चैट बॉक्स नहीं देख रहे, तो Yes, एक sir. सर का थोड़ा रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ा स्लो बात करिए। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है, हमारे साथ जो Okay. स्टूडेंट है वो एक्चुअली टीचर्स है और उम्र में काफी बड़े हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता बट कुछ लोग 60+ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य, Okay, sir. आपने सही बात बोली कि उन लोग को कुछ लोगों को ये सारी चीजें पता भी होंगी, बट आपको उनको पढ़ाना है जिनको ये पता नहीं। बट गजेंद्र सर, मैं आपको एक चीज तो बताना चाहूंगा कि
नहीं गजेंद्र सर है, नहीं सुजाता मैडम है शायद। तो डांगे मैडम, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये आपको बार बार रिपीट किया जाएगा। और आज हम पहला दिन है, तो ये दोनों सर लोगों का यहाँ बारिश के कारण भी थोड़ा नेटवर्क का इशू था, तो उसके कारण दे आर नॉट डायरेक्टली, मतलब अच्छा सेशन नहीं हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल एड्रेसिंग ऑफ द पॉइंट्स, जैसे आपको मोबाइल के फंक्शंस, या फिर आपको गूगल मीट, या फिर आपको जूम, तो दैट टाइम दोज प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर, क्योंकि पहले आपसे सवाल भी लिए जाएंगे। सो एनीवे, वी हैव रीच टू द 9 PM। तो शंकर सर, आपने एक छोटा सा एक उनको क्या बोल सकते हैं, टेलर जैसा दे दिया कि किस तरीके से पढ़ाएंगे, उससे उनको भी थोड़ा तकलीफ समझ में आएगा कि उनको जैसा रोजी पिक्चर फील हुआ होगा वैसा कोई रोजी नहीं होगा, बट देन प्रोबेबली इट विल नॉट बी वेरी हार्श ऑल्सो। तो सर ने लिख दिया कि भाई 1967 के बॉर्न है, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर। आप मेरे से हार्डली सिर्फ एक 6+3 एक, हाँ हार्डली एक 10 साल बड़े। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे समझ में सारी चीजें आती है तो मैडम सर आप सबके भी समझ में आएंगी। एंड प्लीज लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, intention of running this course or our online classes, or we are going into the online MPSC UPSC classes, is not to make money. Interest is to make people feel कि जो लाखों रुपए लोग लेते हैं उसकी सचमुच जरूरत नहीं है when you talk about coaching और classes or even education industry called school colleges। बहुत कम पैसे में की टीचिंग होता है अगर स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट सब मिलके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं। आप इस प्रक्रिया में हमारे साथ है ऐसा आपको हम मान के चल रहे, इसलिए हम आपको इस छोटी सी जो आपके अंदर लैक्यूना या लैकिंग एबिलिटी है, इसको हम आपको इक्विप करना चाहते हैं। इस दरमियान आप सब बड़े हैं, हमसे जो भी गलती होती है आपको हमको हमेशा व्हाट्सएप से मैसेज करके बतानी है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज को डायरी में लिखा जाता है। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ लिखी भूल भी गए हम लोग, आपने कुछ यहाँ वहां से कुछ कमेंट डाल दिया, वी डोंट नो। WhatsApp is the only methodology by which we'll keep track of your all doubts, so that उन doubts को भविष्य में एड्रेस किया जाएगा। So now we will close। सैटरडे को आपको मैंने इस वक्त इसलिए बिजी किया क्योंकि बहुत सारी जो वर्किंग पीपल होते हैं, मोस्टली होम मेकर्स, मतलब घर पे काम करने वाली महिलाएं या पुरुष, सब लोग आजकल काम करते हैं, वो लोग 8 बजे के बाद फ्री रहते हैं, ऐसा हमको इनपुट हमारे पिछले 3 महीने में मिला। तो हम आपकी ये जो क्लास है ये 8 बजे की ही रखेंगे, हो सके तो 8:30 बजे की या 9 बजे की रख सकते हैं। 1 घंटा नहीं पसंद है तो आधा घंटा रखेंगे, बट आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपका फीडबैक जब अभी मैं आपको अटेंडेंस फॉर्म भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हर एक को उसमें आपके जो ओपिनियन है क्लियर टर्म्स में भेजने हैं। आप बड़े हैं, आप कुछ गलत भी मतलब नाराजगी भी जाहिर करेंगे तो मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं इसको पॉजिटिवली ही लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग सच ए वंडरफुल डिसिप्लिन ऑफ नॉट मेकिंग माइक ऑन, नॉट मेकिंग वीडियो ऑन। हमारी तरफ से नेटवर्क और आवाज की वजह से कुछ तकलीफ हुई होगी तो फिर से एक बार माफी मांग के ये सेशन मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टुमारो देयर विल बी वन सेशन, what time will be conveyed to you by WhatsApp messaging. Thank you so much, sir. Bye bye. Good night. Good night, madam. Good night, sir. Thank you. How to exit? Please press that middle वाला red button. आप जब स्क्रीन के ऊपर उंगली टच करेंगे तो आपको माइक दिखेगा, बीच में लाल वाला बटन दिखेगा, साइड में वीडियो साइलेंट किया हुआ बटन दिखेगा। तो बीच वाला जो लाल बटन है फोन वाला, उसको टच कर दीजिए तो आप बाहर जाएंगे। बाहर जाने का तो फीडबैक पूछेगा कि कितने स्टार दे रहे हैं, तो गरीब आदमी को उनको स्टार दे दीजिए 5 आप। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी सब लोग, आप जाएंगे फिर मैं जाऊंगा, तभी वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। So I'm really happy with your gracious presence. Now for today, good night, bye bye. Last 8 लोग प्लीज लीव। चलिए चलिए जल्दी।
चलिए चलिए, शंकर सर, शंकर जगदाले सर, फ्रांसिस मैडम, प्रियंका मैडम, all of you can leave. I will leave at last. Priyanka madam, Shankar sir, thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Good night.